हाँ गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤਿੰਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। फर्स्ट वन है अपने आउटपुट दसनी है इस प्रोग्राम की। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਲੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਹੀ ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ x ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ 10 ਮੈਮਰੀ 'ਚ। ਓਕੇ ਦੈਨ x ਫਿਰ 10 ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ 10.0 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਐਰਰ। ਇਹ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ 'ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਹੈ, जो 10 है वो साडा कॉन्स्टेंट या वैल्यू भी कह सकते हो तुसी, इनू वैल्यू है। दिस इज़ नोन एज वैल्यू लिटिल बिट कॉन्स्टेंट। जो कॉन्स्टेंट्स होंगे डिटेल च तुहानूं दस्सिया जाऊगा कि वो कॉन्स्टेंट्स तुसी किवें फिक्स करनी है एक वेरीएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नैक्सट है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 11 ਗਈ x ਕੋਲੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 12 ਦੇਤੀ, ਫਿਰ 13 ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ 14 ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਪਿਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ x ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੀਜਰ। ਤਾਂ x ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, 11। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x ਨੂੰ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ 12, ਅਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 12 ਹੋਊਗੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 13, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 14। ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ, 14। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, 14। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੰਬਰ 2 ਸੀ। ਨੰਬਰ 3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। नंबर 3 क्वेश्चन है अपने को, असी कॉन्स्ट कीवर्ड नूं किवें यूज़ करना है। जिथे तुसी अपने प्री प्रोसैस स्टेटमेंट्स लगाओगे उत्थे भी तुसी कॉन्स्ट कीवर्ड नूं यूज़ कर सकते हो। मान लो असी एक वेरीएबल लेने ए, उहदी वैल्यू असी 10 फिक्स करना चाहते हैं, असी बाहर ही इनू ग्लोबल वेरीएबल कह देंगे, इत्थे असी इहदा कॉन्स्ट कीवर्ड नाल ये वेरीएबल की वैल्यू असी फिक्स करती। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇੰਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇੱਕ z ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। z ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਪਲੱਸ a ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, z। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
जो एक्स जैड है वो थोड़े लोकल वेरीएबल्स है। इत्थे जो थोड़े एक्स ते जैड है ये थोनों ये सब थोड़े होंगे लोकल वेरीएबल्स। जो तुसी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर वेरीएबल डिक्लेयर करते हो या डिफाइन करते हो, एक्स इज़ अ वेरीएबल, जैड इज़ अ वेरीएबल, इट इज़ अ डिक्लेरेशन। जो तुसी इनू वेरीएबल नू वैल्यू देती 20 तो यह तुहाडी इनिशियलाइजेशन होगी वेरीएबल की। ठीक है, तो जोड़े एक्स ते जैड मेन बॉडी के अंदर यूज़ होए ये वाले वेरीएबल्स तो ये थोड़े लोकल वेरीएबल्स है। तो जो थोड़ा बाहर तुसी मेन फंक्शन तो बाहर कोई वेरीएबल की वैल्यू डिफाइन करके आने हो तो सानू उहदे अगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना पैंदा है कि असी इस वेरीएबल की वैल्यू ए नू फिक्स करता। इन बिटवीन प्रोग्राम के विच जे किते वेरीएबल ए यूज़ होंदा है तो उसकी वैल्यू कितनी समझी जाए, 10 समझी जाए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 20 है, जैड है, जैड इज इक्वल टू 20 + 10 तो जैड की वैल्यू कितनी प्रिंट होएगी 30। ठीक है, समझ आ गई। तो हुण जिहड़ा ए है एरर नहीं प्रिंट करूगा, ए कित्थों वैल्यू ले लूगा बाहरों, क्योंकि असीं इहनूं कॉन्स्ट नाल फिक्स करके आए हुए हैं। इसकी वैल्यू समझ आ गई बेटा। इत्थे तुहानूं दो कंसैप्ट क्लीयर हो गए कि साडा ग्लोबल वेरीएबल किहड़ा हुंदा है, साडे लोकल वेरीएबल किहड़े हुंदे आ। ये वेरीएबल्स है एक्स ते जैड, ये तुहाडे लोकल वेरीएबल्स है, ये ग्लोबल वेरीएबल्स है। इहदी वैल्यू नूं फिक्स करन दे लई तुसीं किहड़ा कीवर्ड लगाओगे अगे, कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है अपना, असी हैश डायरैक्टिव नाल भी अपना वैल्यू नूं फिक्स कर सकते हैं। असी हैश डायरैक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। ये हुण एक तुहानूं मैं कॉन्सटेंट की वैल्यू है जिहड़ी प्रोसैसस दे नाल भी असी मतलब जो कॉन्सटेंट्स है वो प्रोसैसस दे नाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो साडे प्रोसैसर जो हुंदे है देखो, इत्थे असी अपने वेरीएबल्स की वैल्यू फिक्स करन जा रहे हैं। ए दी वैल्यू असी 5 फिक्स करती, हैश डिफाइन डायरैक्टिव लगूगा, उहदे विच असी बी दी वैल्यू मान लो 10 फिक्स करती। ठीक है, हुण असी अपना मेन फंक्शन लगाने आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ a इज़ इक्वल टू %da, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ b इज़ इक्वल टू %d b। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ हैश डायरैक्टिव स्टेटमेंट्स ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ हैश डिफाइन एक वेरीएबल लवांगे। हैश डिफाइन सानू प्री प्रोसैसर अगे लगाना पएगा, एक वेरीएबल लैना पऊगा जिहदी असीं वैल्यू फिक्स करना चाहुंदे हां ते ओहदी वैल्यू असीं किन्नी देवांगे 5। दैन हैश डायरैक्टिव डिफाइन असीं फिर लवांगे जे आपां कोई सैकेंड वेरीएबल लैना। तुसीं इत्थे कॉमा पा के नहीं वेरीएबल्स एक तो ज़्यादा दे सकदे, जिन्ने तुसीं वेरीएबल्स लैने हो उन्नियां तुहानूं हैश डिफाइन डायरैक्टिव स्टेटमेंट्स लगानियां पैणगीਆਂ। नैक्सट हैश डिफाइन बी की वैल्यू तुसीं 10 फिक्स करती। जो तुसीं ये प्रोग्राम चलाओगे तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 5 एंड बी की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 10। तो तुसीं हैश डायरैक्टिव स्टेटमेंट्स के थ्रू भी अपनी वैल्यू नूं फिक्स कर सकते हो। हुण आपां एक प्रोग्राम बनाने आ कि असीं 3 नंबर्स की की करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तुसीं ये प्रोग्राम भी नोट कर सकते हो। जे तुहानूं आ जांदा है कि तुसीं कॉन्सटेंट के थ्रू ਜਾਂ कॉन्सटेंट्स एक वेरीएबल की वैल्यू नूं फिक्स करके ਜਾਂ कॉन्सटेंट यूज़ करके तुसीं की बनाना प्रोग्राम बनाना, तो तुसीं ये वाला पेपर दे विच प्रोग्राम अटैम्प्ट करके आ सकते हो। हुण इस तरह ही मान लो आप 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई करानी है, मतलब जे असी उपर वेरीएबल्स नूं फिक्स करता तो उन्होंने वेरीएबल्स के उपर जे असी ऑपरेशन करना तो ऑपरेशन सानू मेन बॉडी के विच ही करना पऊगा, ना कि सानू अपना उपर नहीं असी मतलब कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म करांगे। तो असी इत्थे एक होर ले लांगे स्टेटमेंट हैश डिफाइन C 10। तो हुण आपां ये जिहड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं मल्टीप्लाई ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, असी हैश डिफाइन ए की वैल्यू फिक्स करती 5, नो सैमीकोलन इज़ यूज्ड देयर। हैश डिफाइन बी की वैल्यू आप 10 फिक्स करती, हैश डिफाइन सी की वैल्यू आप 10 फिक्स करती। तो असी 3 वेरीएबल्स ये लए। हुण असी एक लोकल वेरीएबल सानू इत्थे एक लैना पऊगा, काहदे वास्ते लैना पऊगा, बिकॉज असी 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। उन्होंने 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई का जो साडे कोल आंसर आऊगा वो भी किसी ना किसी सानू वेरीएबल दे विच पाना पऊगा, स्टोर करना पऊगा। तो ये लिए असी मान लो इंट वेरीएबल Z ले लैंदे आ। Z दे विच असी की कराउणा चाहुंदे आ,
A ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ B ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ C। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ Z ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Z ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟ Z ਦੀ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, A ਨੂੰ ਸਪੇਸ 'ਚ 5 ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ, B ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 10 ਐਂਡ C ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 10। ਹੁਣ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ 5 ਇੰਟੂ 10 ਦੈਟ ਇਜ਼ 500, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ 500। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, वेरिएबल भी यूज़ करके दिखाते, थोड़े डेटा टाइप्स भी यूज़ करके दिखाते। तो दैट्स ऑल अबाउट योर डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। होप है कि तुहानू मेरा लैक्चर बहुत चंगी तरह समझ आ गया होना है। ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।